What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 5th of March, and today was Sensex weekly expiry, and it was quite a brutal expiry, especially the price action post 2:30 p.m. The markets opened at 79,500 and कल जो straddle close हुआ था 1,100 rupees पे, वो आज open हुआ 600 पे. So almost 500 points of overnight crush. So people who could muster the courage to actually take these short straddles overnight, they made a killing for one day of risk. But again, this could have gone either ways, but the risk didn't materialize and the people who actually took that risk got paid really well. And once the markets opened, the markets were quite volatile for the premiums. मतलब market 500 point के range में multiple times ऊपर नीचे move होता रहा and it formed WM, all sorts of reversal patterns with the straddle pricing less than 500 rupees. And at 2:30, the markets were trading at 79,200 levels, and that is when one media house reported something positive regarding this ongoing war, and the markets shot up almost 1,200 points. Sensex from 79,200 levels went all the way till 8,300, and from there again it tanked 500 points. All that happened in the last 1 hour, and this move blew up the calls as high as 100 times. जो 2 रुपए 3 रुपए पे जो calls trade कर रहे थे, they shot up to 300 and 400 in matter of minutes. And of course I was also caught off guard in that move because this was not expected. But again, in this tumultuous time, one has to be a little cautious of these kinds of moves. So from good green, again I had to close in red. Also, because of this up move, we saw a decent amount of crush in India VIX, where we saw a 15% decline in India VIX, and there was a cool off in a lot of the premiums of long-term option contracts. So tomorrow is Friday, and Nifty's straddles are again at an elevated level. Let's get to the terminal and let's see क्या हम कल के लिए कुछ trade opportunity spot कर सकते हैं. So positional front पे, you can notice that the markets are just making a lot of noise. कभी gap up, कभी gap down, and then इंट्राडे में रिकवरी एंड प्राइस एक्शन पॉइंट्स को भी ज़्यादातर रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, एंड विच इज़ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड इन अ सिचुएशन लाइक दिस. बट today's VIX crush of almost 15% जो crush जो हुआ है VIX, that is indicating that this might be some sort of a low. And at the same time जो market breadth जो है वो काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ये जो बजट के दिन जो मार्केट ब्रेड था एंड आज के दिन जो मार्केट ब्रेड थे, देर आर मोर नंबर ऑफ स्टॉक्स ट्रेडिंग अबव 50 EMA एंड 200 EMA एट दिस पॉइंट दैन एट दिस पॉइंट. सो मार्केट ब्रेड जो इंप्रूव हो रहा है, सो विच इज kind of giving an indication that markets might be forming some sort of a base here. But again, अगर market daily time frame पे इस low को अगर तोड़ता है, तो then definitely there will be a decent amount of volatility again starting in the markets. So lower time frame पे बात करें, तो today was yet again a volatile day. तो 5 minutes टाइम फ्रेम पे स्पेशली और निफ्टी इतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है. अपार्ट फ्रॉम दिस मूव आपको लग रहा होगा कि मार्केट तो काफ़ी साइडवेज होगा, बट मोस्ट ऑफ द पेन especially for the option writers was witnessed in सेंसेक्स. बिकॉज आज सेंसेक्स की जो एक्सपायरी थी, एंड ये मैंने इंट्रो वीडियो पे भी मैंने बताया था कि 1,100 रुपीज़ पे जो कल स्ट्रैडल क्लोज हुआ था, आज ओपन हुआ 600 पे. जो एक्चुअली फर्स्ट टिक जो दिखने को मिला मुझे, दैट वाज समवेयर अराउंड 580 लेवल्स, एंड वहाँ से मार्केट स्ट्रैडल कंटिन्यूसली डीके तो होता गया. ऑफकोर्स देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पाइक व्हेन द मार्केट स्टार्टेड मूविंग बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़. 170 से ऑलमोस्ट 300 तक ऑलमोस्ट स्ट्रैडल स्पाइक देखने को मिला, ऑलमोस्ट 60-70% स्पाइक, विच इज़ काइंड ऑफ very surprising because हमने जेन स्ट्रीट काइंड ऑफ अ स्पाइक को ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों से हम लोग देखे नहीं थे, एंड आज सिमिलर काइंड ऑफ अ मूव हमको देखने को मिला. लोअर टाइम फ्रेम पे बात करें, यू कैन नोटिस दैट मार्केट्स ने ये जो 500 पॉइंट का जो मूव है, 500 पॉइंट के आसपास मार्केट्स ने मल्टीपल टाइम्स फ्लोर एंड सीलिंग दोनों को टच करता आया. फर्स्ट 79,500 से 200, देन 500, देन 200, देन 500. सो 500 का पॉइंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे till 2 o'clock, the markets almost created a swing of more than 3,000 points, 500 points ka bana ke, and it was pretty hard to actually hold on to those positions. But once this kind of a range got formed till 2 o'clock, one would definitely expect that the markets would be in a sideways kind of a day. Volatile ज़रूर था, but एक छोटा सा range में markets volatile रहा, and this move was some sort of a outside the syllabus kind of a move. And यहाँ से 79,200 से markets almost 8,350, that is almost 1,150 points का एक
unidirectional spike देखने को मिला, especially after 2:30 when those OTM calls were dirt cheap. So definitely, some people were saying that this is a manipulation and whatnot, but one needs to understand that manipulation जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में मार्केट्स में होता ही होता है. एंड इवन दिस मूव, इवन दैट टुक माई मार्क टू मार्केट अवे. आई वॉज सिटिंग ऑन अ गुड ग्रीन, बट देन आई हैड टू क्लोज इन रेड बिकॉज I got stuck in this particular move, and just like me, most of the people would have gotten stuck. मैंने यहाँ पे थोड़ा वेट किया because market ने 1 2 3 4 5 times markets ने यहाँ पे touch point कर रहा था, तो I was not expecting the markets to breach this. But when this candle formed, all those calls, they kind of blew out of proportion, and I had to square off those calls at exorbitant prices. So कल के लिए निफ्टी का जो 2DT है वो ट्रेड करना पड़ेगा हमें. एंड कल का जो निफ्टी का जो प्रीमियम्स है, so the premiums are somewhere around 420, so which is slightly good because कल तक almost 620 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा था. तो विद इन अ सिंगल डे ऑलमोस्ट 110 पॉइंट्स का एक क्रश देखने को मिला है. एंड निफ्टी पे ज़्यादातर मार्केट्स में, मतलब निफ्टी में ज़्यादा इतना इफेक्ट पड़ा नहीं होगा ऑप्शन राइटर्स को, बिकॉज प्रीमियम्स अच्छे थे एंड यहाँ पे गामा कम था, एंड वॉल का जो कंपोनेंट रहता है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहता है बिकॉज हम ऑलमोस्ट 1 वीक दूर है एक्सपायरी के लिए. सो अगर कल के प्राइस एक्शन के ट्रेड्स के ऊपर बात करें तो बेसिकली शॉर्ट वॉल ट्रेड नहीं करना चाहिए बिकॉज अगेन वी आर गोइंग इन टू द वीकेंड विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल न्यूज़ फ्लो. तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये जो 420 रुपीज़ पे जो स्ट्रैडल आज क्लोज हुआ है, कल कितने पे ओपन होगा एंड कल कितने पे क्लोज होगा, दोनों चीज़ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. तो डेफिनेटली डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए. तो सिर्फ एक डायरेक्शनल ट्रेड्स को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. तो अगेन 2 ही ट्रेड मेरे लिए जो पॉसिबल है वो नज़र आ रहा है. वन इज़ इफ़ अट ऑल द मार्केट्स कम टू दिस लेवल, इस लेवल पे अगर मार्केट्स आता है 24,500 लेवल्स पे, देन अगेन एक 50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं. एंड यहाँ पे देयर विल बी सम पीपल हु थिंक दैट एज दिस एज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस बिकॉज मल्टीपल टच पॉइंट्स है, बट आई वुड नॉट गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस लेवल बिकॉज मार्केट्स यहाँ पे फ्लैट खुलता है एंड इसको ब्रीच कर देता है, then most probably markets इस रेंज में आएगा. So I want the markets to come to 24,500 levels to actually make some sort of a double bottom and start heading higher. And उसके अलावा शॉर्ट रेट्स हम कहाँ ढूंढ सकते हैं? शॉर्ट रेट्स मैं ढूंढने वाला हूँ 25,100 के आसपास. So 25,000 पे भी मतलब मैं ट्राई कर सकता हूँ शॉर्ट ट्रेड, बट यहाँ पे थोड़ा स्कैल्प काइंड ऑफ अ ट्रेड होना चाहिए. 50 पॉइंट से ज़्यादा हम लोगों को स्टॉप लॉस नहीं देना चाहिए. अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है देन अगेन वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टू दिस लेवल, देन 25,150 25,200 के आसपास फिर से एक हम लोग शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. बिकॉज क्या है यहाँ पे, दिस इज अगेन इन माई ओपिनियन दिस इज स्टिल अ सेल ऑन राइज मार्केट बिकॉज लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखा है. ऑफकोर्स ज़रूर जो लास्ट 1 आवर में मार्केट्स में ऐसे टाइप ऑफ रैलीज आ रहा है, बट दीज आर मोस्टली एक्सपायरी रिलेटेड फ्लोज एंड जो मीडिया न्यूज़ जो आया है उसके बेसिस पे जो नीजक रिएक्शन हुआ है उसके बेसिस पे जो फ्लो आया है. तो आई वुड स्टिल वांट टू शॉर्ट द मार्केट्स एट द रेजिस्टेंस लेवल्स. जो बेसिकली मैं मार्केट्स कहीं पे भी ओपन होता है वहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन नहीं लूँगा, बट रैदर आइड वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टू माई पर्टिकुलर लेवल. सो वन पर्टिकुलर लेवल इज 25,000 लेवल्स, जो कल का जो 2 दिन पहले का जो हाई जो मारा था बड़ा गैप डाउन के बाद जो मार्केट्स ने रेजिस्टेंस लिया, दैट वाज अराउंड 25,000 लेवल्स. सो यहाँ पे 25,000 लेवल पे पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद, पैटर्न फॉर्म होने के बाद, एक एम पैटर्न या डबल टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न फॉर्म होने के बाद, ये नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हम लोग एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं. इसका जो डबल टॉप का जो हाई है उसको ही हम लोग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा. बट अगर मार्केट 25,200 के आसपास आता है तो देन वी नीड नॉट वेट फॉर दोज पैटर्न्स, जस्ट लेवल के बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं विथ अराउंड 50 to 60 पॉइंट ऑफ स्टॉप लॉस, एंड आराम से 1:3 काइंड ऑफ ट्रेड्स को भी हम लोग प्लान कर सकते हैं. बिकॉज अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करना शुरू करेगा देन द नेक्स्ट लॉजिकल स्टॉप वुड बी 25,000 लेवल्स. 25,000 राउंड नंबर भी हो जाता है एंड ये जो लेवल है दिस विल ऑल्सो एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट. तो हम लोग टारगेट को 25,000 तक हम रख सकते हैं, बट अगेन यहाँ पे मार्केट्स आना चाहिए 25,200 तक. अपार्ट फ्रॉम दैट इस रेंज के अंदर मैं कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं हूँ बिकॉज अगेन यहाँ पे चॉपिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. यू कैन नोटिस दैट मार्केट्स ने ये जो 24,530 से लेके 24,630 तक ऑल दीज मूव्स, लेकिन जो छोटा छोटा जो मूव्स जो दिख रहा है दीज आर ऑल 100 पॉइंट्स का मूव्स जो है.
look at this. This is a 100-point move. This is a 100-point move. Again, 100-point move, 120-point move, 100-point move. So markets 100, 120 points, 150 points को ऐसे ही जैसे मूव कर रहा है कि 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ऐसे मूव कर रहा है कि जैसे हलवा है. So in such situation, such volatile markets, we should be able to protect our capital. And personally for me, March is not going that great. I am already at a 1% drawdown now, including today's loss. तो yes, मैं चाहता हूँ कि एक 1% से ज़्यादा मतलब ड्रॉडाउन ना हो. तो द नेक्स्ट एक्सपायरी होपफुली इट विल बी गुड फॉर मी. एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स आज का एक्सपायरी आपके लिए कैसा रहा. एंड आई सी यू अगेन आफ्टर टुमारोज मार्केट एक्शन. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.